अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लियाबत। बुलेटिन का आगाज करेंगे फलस्तीन की सूरत हाल पर होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से, जहां खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी को झंझोर डाला। कहा, इसराइल आलमी सरपरस्ती में फलस्तीन पर मजालिम ढा रहा है। सैकड़ों शहीद हो गए, हजारों जख्मी हैं, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उन्होंने मुतनब्बे किया कि बस अब बहुत हो चुका, इसराइल की जारिहत को रोका जाए। क्या इसराइल को कोई पूछने वाला नहीं? आलमी बिरादरी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इसराइल को रोका जाए। पाकिस्तान ने फलस्तीनी अवाम की जिंदगी महफूज बनाने के लिए फलस्तीन में आर्मी फोर्स तैनात करने और फलस्तीन का पुरअमन हल निकालने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine. Children, women and men in Palestine are being killed with impunity. In 1 week of Israeli attacks, over 250 Palestinians have been killed and thousands injured. Gaza is plunged in darkness, literally and metaphorically. The only light is that of Israeli explosions. It is time to say enough. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. The Security Council has failed even to demand a cessation of hostilities. Those preventing the Council from doing so bear a heavy responsibility. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. There is no moral or military equivalence between the beleaguered and occupied Palestinian people. सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने अपने खिताब में इसराइली बमबारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फलस्तीन में जारी कशीदगी को रोकना होगा। दोनों अतराफ से जंग बंदी होनी चाहिए। गजा के बच्चे जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने का कोई जवाब नहीं। फरीकैन से कहते हैं कि सब्र तहम्मुल से काम ले। इसराइल और फलस्तीन तनाज़ा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Deeply shocked by the continued air and artillery bombardment by the Israeli Defense Forces in Gaza. These have claimed the lives of at least 208 Palestinians, including 60 children, and injured thousands more. Continued indiscriminate firing of rockets by Hamas and other militant groups towards population centers in Israel, resulting in at least 12 fatalities, including 2 children, and hundreds of injuries, is also unacceptable. The fighting must stop immediately. The fighting has left thousands of Palestinians homeless and forced over 50,000 people to leave their homes and seek shelter in UNRWA schools, mosques, and other militant groups, to stop the indiscriminate launching of rockets and mortars from highly populated civilian neighborhoods into civilian population centers in Israel, also in clear violation of international humanitarian law. We know far too well that violence begets violence. The unconscionable deaths, suffering and destruction of the past 10 days only serve to push the prospect of sustained peace further into the future. A revitalized peace process is the only route to a just and lasting solution. कौमी असम्बली इजलास में फलस्तीन, उर्दन, कतर, तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा ने भी इसराइली मज़ालिम पर कड़ी तनकीद की और इसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। वज़ीर खारजा फलस्तीन ने कहा, इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। जो कहते हैं इसराइल को दिफा का हक हासिल है, वो दरअसल जुल्म की हिमायत कर रहे हैं। कतर के वज़ीर खारजा ने कहा, बैतुल मक़दस पर हमले और इस पर कब्जे की इसराइली कोशिशों पर हमें शदीद तशवीश है। वज़ीर खारजा उर्दन ने कहा, इसराइल ने हमले में खवातीन और बच्चों को शहीद किया। इसराइली हमले में गजा में हजारों फलस्तीनी बेघर हो गए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल पर आलमी कानून पर अमल करवाने का मुतालबा किया। तुर्क वज़ीर खारजा ने इसराइल को मुतनब्बे किया कि इसे बहुत जल्द अपने मज़ालिम की कीमत चुकाना होगी। उन्होंने नक्शा दिखाते हुए बताया कि किस तरह इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन पर कब्जा किया और वो मुसलसल फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा करके अपना रक़बा बढ़ा रहा है।
अर्जी फलस्तीन पर इस्राएली दहशतगर्दी जारी है। 11वें रोज भी गजा पट्टी पर मुतादिद बम बरसाए गए। एक फलस्तीनी शहीद और 14 जख्मी हो गए। इजरायली बमबारी में अब तक 228 फलस्तीनी शहीद और 1600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी सदर ने इजरायली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। नाजायज यहूदी रियासत की बदमाशी, फलस्तीन में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। सयूनी फौज ने गजा में फिर बम बरसा दिए। इमारतें मलबे का ढेर, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इमारतें भी तबाह। हजारों फलस्तीनी बेघर हो गए। शहादतें बढ़ रही हैं। मासूम हया के खानदान के 42 अफराद भी शोहदा में शामिल। दुखियारी लड़की इंसाफ की तलबगार। العمارة الثانية مش عارفة احكي لك، واحدة كبيرة بالسن عمية، الله عمية أنا مش عارفة ايش عملت بالصوت. ايش رسالتي؟ بدناش تعملوا لنا مسيرات بدون ما تفيدونا، بدنا حل احنا، بدنا اسعار، بدنا هدنة، تعبنا دمنا الحرام. फलस्तीन के कुव्वत गोयाई से महरूम बच्चे की इशारों से आलमी बिरादरी को जगाने की कोशिश। الحرب تقف وكمان كلنا يشوفوني مبسوط تخلص الحرب. फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। 11 रोज में 63 बच्चों और 30 खवातीन समेत 200 से जायद अफराद शहीद हो गए। सैकड़ों फलस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हर 5 में से एक फलस्तीनी को फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना है। दहशतगर्द इसराइल का वजीर आजम हठधर्म है। गजा में हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमरीका का भी दोहरा मयार। एक जानिब नेतन्याहू को जंगबंदी का कहा, दूसरी जानिब इसराइली मजालिम के खिलाफ फ्रांस की जंगबंदी की करारदाद की हिमायत से इनकार कर दिया। दहशतगर्द इसराइल के बेहिस वजीर आजम नेतन्याहू की बदमाशी और हठधर्मी बरकरार, गजा में हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चौथी बार इसराइली वजीर आजम को फोन खड़काया, कशीदगी कम करने और तनाजे को जंगबंदी की तरफ ले जाने पर जोर दिया, मगर नेतन्याहू ने कर दिया साफ इनकार। ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकासद हासिल नहीं हो जाते। मामले पर अमेरिका का दोहरा मेयार भी खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिका ने इसराइली मजालिम के खिलाफ फ्रांस की जंगबंदी की करारदाद की हिमायत से इनकार कर दिया। सलामती कौंसिल में अमेरिका 5 मुस्तकिल अराकीन में से एक है जिसके पास वीटो का हक है। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में आवाज बुलंद होने लगी। अमरीका, बर्लिन, ट्यूनिस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक में लोग सड़कों पर आए और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान में भी फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए आज रैली निकाली गई। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आवाजें बुलंद हो गईं। दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। अमरीका, बर्लिन, ट्यूनिस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक में लोग सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान में भी मजलूम फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मसलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती कश्मीरियों का जुर्म बन गया। फलस्तीनियों के हक में दीवार पर नारा तहरीर करने के जुर्म में बादशाही बाग से नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 50 घंटों की कैद ने नौजवान कश्मीरी पेंटर को नई तहरीक दे दी। आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स यहाँ पे कुछ लड़के जमा हुए थे, मतलब इन सॉलिडिटी विद पैलेस्टाइन। अच्छा, तो फिर उन्होंने चाहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले यहाँ पे, तो फिर मुझे बोला गया कि यहाँ पे आप ग्राफिटी करके दो, ग्राफिटी करके दो। तो किया? फिर मैंने किया सर। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि पुलिस आएगी अचानक। अच्छा, पुलिस जो ही आ गई तो मैं छिप गया, तो फिर उसी टाइम में पकड़ा गया। जब मुझे यहाँ से उठाया गया तो पहले मुझे सीधे थाने
मैं ले गए वो, मुझे लगा पता नहीं मुझे कहाँ मतलब ये ले जाएगी। बाद में लॉकअप में मुझे बंद रखा गया और जो कमरा था 10 बाई 12 का, उसमें हम 8 बंदे मतलब बंद थे और कोने में ही कमोड, ये जो वॉशरूम है, वॉशरूम तो नहीं कह सकते हैं बट कमोड था वहां पे, उससे स्मेल इतनी निकलती थी कि हमें चक्कर आने लगे उस स्मेल से। फिर हमें वेट करना पड़ता था जब खाना आता था 1 बजे, तो फिर हम उस टाइम बाहर निकलते थे, बाहर दूसरा वॉशरूम था तो हम उस टाइम वो यूज करते थे। पहले में लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स वगैरह वगैरह पेंट करता था, लेकिन अब मुझे लगा कि पेंट भी कोई सब्जेक्ट है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ ये है।